Welcome students in biology class. Today we describe the five kingdom classifications which are proposed by the Whittaker. Whittaker classified organism into the five kingdom on the basis of following three level of organization. First one is the cell structure, means prokaryotic or eukaryote. Second, modes and sources of nutrition, autotrophic or heterotrophic organisms. And third one, body organization, unicellular or multicellular. Okay. In previous video we described about them five kingdom classifications, criteria. ठीक है, तो Whittaker that is given the five kingdom classifications and किस लेवल पे दिए थे आपको यह भी क्लियर हो गया. ओके, this chart also we described in previous videos in which that is the given the organism that divided into two categories, prokaryotic और eukaryotics. prokaryotic unicellular organisms होता है, मोनरा जो फर्स्ट किंगडम है इनका. सेकेंड यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. यूनिसेलुलर है तो उसमें एक किंगडम आता है जिसको इन्होंने रखा था प्रोटिस्टा को. ठीक है. इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर में दो तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, एक विदाउट सेल वॉल, एक सेल वॉल के साथ होता है. सेल वॉल के साथ जो प्रेजेंट होता है उसमें दो क्राइटेरिया है. एक होता है विच मेक देयर ओन फूड, जैसे प्लांट है, और एक विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड जस्ट लाइक ए फंगस. ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है. एंड विदाउट सेल वॉल दूसरा जो पार्ट है वो एनिमल्स का है. दैट इज क्लियर. So today we describe one by one the kingdoms which are classified the Whittakers. First kingdom is में Monras. There are some basic features of Monras are first one the organisms are unicellular prokaryotic. जो organism होते हैं unicellular होते हैं और prokaryotic organisms होते हैं. Everyone know about the what the character of prokaryotes. Clear हो गया होगा. Okay. Second, incipient nucleus are present means nucleus cannot well defined nucleus are present. इसमें nucleus well defined present नहीं होता. Third, membrane bound cell organelles is absent just like a mitochondria, Golgi apparatus, plastid, lysosomes. That is all they are absent in case of prokaryotic. We also discuss about in prokaryotic and eukaryotic differentiate जो बताए थे आपको इसके पहले वाले वीडियो में. ठीक है, क्लियर. वो सभी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं. इन केस ऑफ मोनरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज द ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज द हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर. ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं मीन्स दे मेक देयर ओन फूड्स एंड दैट इज आल्सो हेट्रोट्रॉपिक नेचर मीन्स दैट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. Some of the organisms have cell wall just like a bacteria and cyanobacteria, and while other lack cell wall. In some cases the cell wall is absent. Clear. just like example आपका mycoplasma है. Some common features of monera just like a bacteria, Anabaena, bacteria and cyanobacteria भी बोल सकते हैं. ठीक है, nostoc, nostocales etc. This is the example of monera. Just like you see here, that is one example of Anabaena or given years. Clear. This is the cyanobacteria. Second one is the protista. Some features of protista are first one that is the unicellular eukaryotic organisms. ये unicellular है लेकिन eukaryotes है, और monera क्या था, unicellular था but prokaryotic in organisms. Clear. What is difference between the prokaryote and eukaryote, you know about them. एक क्लियर हो गया होगा. ओके. सेकेंड पॉइंट, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट in them and membrane board or cell organelles also present means nucleus well defined nucleus present होता है इसमें, and membrane bond cell organelles भी present होता है just like a mitochondria, plastid and vacuoles. All of present in case of protista organisms. Clear.
Next one, that is the some protist use appendages such as hair-like cilia are present, just like in case of paramecium. पैरामीशियम के पूरे बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम सीलिया कहते हैं. सीडोपोडिया इन केस ऑफ अमीबा देयर इज फॉल्स फीट आर फॉर्म, दिस इज हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडीज, जिसको सीडोपोडिया बोलते हैं या फॉल्स फीट भी बोलते हैं. और विप लाइक मीन्स फ्लैजला which are present in case of euglena, that is help for the locomotion of organism, means that is movement from one place to another. And last point, that is the mode of nutrition can be autotrophic or heterotrophic. जो इस फाइलम इस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स है वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं एज वेल एज द हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, मीन्स दैट इज मेक देयर ओन फूड और दैट इज डिपेंडेंट ऑन द अनदर ऑर्गेनिजम्स. दैट इज क्लियर. और इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स है. इन केस ऑफ अमीबा देयर इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन अकर्स. व्हाट इज द होलोजोइक? मीन्स engulfment of solid food, means organism that intake the food solid form, solid as the liquid medium, that is intake the food inside the mouth. Clear. इसका एग्जाम्पल की बात करें तो डायटम्स है, अमीबा है, पैरामीशियम यूग्लिना एटसेट्रा. यू सी सम एग्जाम्पल आर गिवन हियर. इसमें आपका यू सी हियर दैट इज फ्लैजला आर प्रेजेंट यूग्लिना में, एसिडोपोडिया इन केस ऑफ अमीबा, और ऑन द सरफेस ऑफ पैरामीशियम देयर इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, दिस इज नोन एज द सीलिया. ओके. नेक्स्ट आइए किंगडम विच आर गिवन बाय द Whitaker, that is the fungi or fungus. Fungus are achlorophyllous, means the chlorophyll is absent. Heterotrophic and eukaryotic organisms. जो ये organisms होते हैं heterotrophic भी होते हैं, means they cannot make their food because there is chlorophyll absent, so dependent on the another organisms. And eukaryotic organisms ये eukaryotes होते हैं. सेकेंड पॉइंट, दे मे बी यूनिसेलर, ये यूनिसेलर भी होता है, जस्ट लाइक वन एग्जांपल इज द ईस्ट. और फिलामेंटस, फिलामेंटस बॉडी होती है. मोस्ट ऑफ फंगस जो होते हैं जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है फिलामेंट की तरह होते हैं, लंबे होते हैं, जिसको इसलिए दैट इज नोन एज द फिलामेंटस. मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एट सर्टेन स्टेज ऑफ देयर लाइव्स. ठीक है. इसमें से जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर डेवलप्ड इनटू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सम ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स के पैरासाइट होते हैं. व्हाट इज द पैरासाइट? मींस दोज ऑर्गेनिजम दैट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिजम फॉर देयर फूड इज नोन एज द पैरासाइट्स. और सम आर द saprophytic in nature, decomposers, means that is obtain their food from dead and decaying material. Cell wall की बात करें, the cell wall is made of the tough complex sugar called chitin और fungal cellulose. इसका जो सेल वॉल होता है वो टफ होता है, दिस इज मेड ऑफ द chitin, प्रोटीन होता है, इससे बना होता है. ओके. नेक्स्ट वन, देयर रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. यहाँ जो फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है. ह्यूमन बींग की बात करें दैट इज आल्सो यूज्ड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन्स. देयर सम member of the fungi that is showing the symbiosis associations. What is the symbiotic associations? Means that is the mutually dependent relationship with two organisms without harmful to each others. Means association of two organisms without harmful to each other, that is survive of both. This is known as the symbiotic association. For example, lichen. Lichen is the symbiotic association of algae and fungi. एल्गे का फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल होने के कारण दैट इज मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट दैट इज रिक्वायर्ड द वाटर. तो वाटर किसके थ्रू मिलेगा? बिकॉज इन केस ऑफ एल्गी रूट इज एब्सेंट, तो हाउ कैन दे एब्जॉर्ब द वाटर? दैट इज एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द फंगस.
फंगस जो होता है माइसिलियम स्ट्रक्चर और रूट लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो फंगस एल्गी को वाटर प्रोवाइड करता है जिससे प्लांट फूड फॉर्मेशन करता है और दोनों साथ में ग्रोथ करते हैं। इस तरह के एसोसिएशन को हम सिम्बियोसिस बोलते हैं। दैट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एगेरिकस, एगेरिकस दैट इज कॉमन एज द मशरूम, वेजिटेबल फंगस है जो यूज़ किया जाता है, खाने में यूज़ किया जाता है एगेरिकस को। पेनिसिलियम that is used for the formation of antibiotics and rhizopus which cause the bread mold। ब्रेड पे देखते हैं कभी कभी पूरा ब्लैक पैचेस हो जाता है ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन। वो कौन सा फंगस होता है? राइजोपस होता है। ओके, जस्ट लाइक यू सी दैट इज गिवन द एग्जांपल हियर इज द एगेरिकस विच आर यूज्ड फॉर द एटिंग। क्लियर। नेक्स्ट किंगडम है अब प्लांटिंग। The characteristics of kingdom plants, there are some basic features. First, multicellular eukaryotic organisms and they have the cell wall which are made of the cellulose। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूकैरियोटिक होता है, सेल वॉल पाया जाता है और सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेकेंड थिंग, ग्रोथ इज अनलिमिटेड एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। इसमें ग्रोथ कंटिन्यू होता है और कब तक? जब तक प्लांट की डेथ ना हो जाए। थर्ड वन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज द प्लांट नॉर्मली दैट इज द ऑटोट्रोपिक इन नेचर, मीन्स दैट इज मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। क्लियर। नेक्स्ट वन, द रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ प्लांट दैट इज द स्टार्च एंड लिपिड के रूप में फूड स्टोर होता है इन केस ऑफ प्लांट। प्लास्टिड प्रेजेंट, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट एंड वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज। प्लास्टिड, इसमें क्लोरोफिल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम्स which are present during the cell division in case of animal cell, but in case of plant that is absent, and vacuole, this is the larger in size, present in case of plant, but is smaller size that is occur in case of animals। Okay, next and last kingdom which are given by the Whitaker, that is the Animalia। Some features of Animalia which are classified them। फर्स्ट वन, द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये भी है, यूकैरियोटिक है लेकिन सेल वॉल इसमें अब्सेंट होते हैं। सेकेंड, द सेल वॉल इज अब्सेंट। थर्ड वन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, या हेट्रोट्रॉपिक नेचर होते हैं, मीन्स दैट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर फॉर देयर फूड। द रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट। इसमें जो फूड स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट के रूप में होता है। एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल देयर सेल्स प्लास्टिड्स आर एब्सेंट एंड वैक्यूल्स आर स्मॉलर साइज। जो प्लास्टिड होते हैं इसमें एब्सेंट होता है, वैक्यूल की जो साइज होती है स्मॉल होती है देन द प्लांट सेल, एंड दैट इज़ द मोर नंबर। जो वैक्यूल्स होते हैं या large number are present in case of animals, but in case of plants that is very few are present। Okay, so this is the some characters of different kingdoms which are given by the Whitaker। That is clear। if यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक्स।